Hello, guys. Welcome to my YouTube channel. We have started a new book, NCERT Class Ninth Geography, and we have started the new lesson uh, today. तो स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक और फर्स्ट लेसन है इंडिया साइज एंड लोकेशन भारत आकार और स्थिति we have started a new lesson. India is one of the ancient civilization in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है वो काफी प्राचीन है और अंतिम 50 वर्षों में भारत ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में काफी प्रोग्रेस की है. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. संपूर्ण आर्थिक विकास में योगदान देने वाले एग्रीकल्चर, कृषि, उद्योग और टेक्नोलॉजी ने भी काफी योगदान भारत के विकास में दिया है. India has also contributed significantly making of the world history. विश्व का इतिहास बनाने में भारत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसी ये बात कह रहे हैं. ये तो हुआ इंट्रोडक्शन. अब अगला टॉपिक इसमें है लोकेशन यानी कि स्थिति. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. इंडिया इज नॉट अ स्मॉल कंट्री. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. भारत एक वृहद देश है, laying entirely in the northern hemisphere. Figure 1.1. Hemisphere 1.1. The main land extends between latitudes 8 degree 4 minute and 37 degree 6 minute north and longitudes 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute ईस्ट. तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हेमिस्फीयर है, जो ग्लोब है, ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ पर है. तो ये ग्लोब बना हुआ है यहाँ पर. तो अगर हम इसमें 0 डिग्री में एक लाइन खींच दें, वी आर टू ड्रॉ 0 डिग्री लाइन. सो इट इज North Hemisphere and it is South Hemisphere. So India is located to North Hemisphere and 0 degree line in longitude, so it is East Hemisphere and it is West Hemisphere. So India is located to North East Hemisphere. India उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है. इसमें जो अक्षांशीय लेटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है इंडिया की 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट. दूसरे मैप में देख लेते हैं हम. 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट इज अ latitudinal distance and longitudinal distance is 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. The Tropic of Cancer 23 degree 30 minute north divides the country into almost two equal parts. जो Tropic of Cancer line है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये भारत को विभाजित करती है दो बराबर हिस्सों में. तो हम मानचित्र में देख लेते हैं. यहाँ पर आपको दिख रही है 23 डिग्री 30 मिनट जो ईस्ट लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इट इज डिवाइड टू टू पार्ट ऑफ इंडिया. इट इज क्लियर.
the southeast and the southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Find out the extent of these groups of the islands from your atlas. आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स को फाइंड आउट करना है अपने एटलस में। और ये दोनों आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स साउथ ईस्ट में है, जबकि लक्षद्वीप आइलैंड्स साउथ वेस्ट में है। इट इज क्लियर? ये हम मैप में भी देख लेते हैं। इट इज मैप इंडिया का एंड साउथ ईस्ट, it is south east location. This is Andaman Nicobar Islands located to southeast location, and southwest location it is Lakshadweep located to southwest location in India. It is clear? Do you know, क्या आप जानते हैं? The southernmost point, the Indian Union Indira Point got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami. जब 2004 में सुनामी आई थी, उस समय पर जो सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट था, सबमर्ज्ड, ये डूब गया था पानी के अंदर। Tsunami is the Japanese word. Tsunami is the Japanese words. This is next topic. Size. The land mass of India has an area 3.28 million square kilometer. India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल या टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसका 2.4% इज बिलोंग टू इंडिया। 2.4% इंडिया में है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सभी लैंड कवर एरिया को देखें तो इंडिया का 2.4% हिस्सा विश्व में है। From the figure 1.2, it is clear that India is the 7th largest country of the world. फिगर 1.2 1.2 ये निर्धारित करता है कि इंडिया 7वां सबसे बड़ा देश है, 7th largest country of the world। तो इसे देखते हैं। ओके, दिस इज फर्स्ट नंबर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट नंबर रशिया, दूसरा कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। बेस्ड ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा शीट 2005, पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो, वाशिंगटन डीसी। तो 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। इंडिया 7 लार्जेस्ट कंट्री किन किन देशों से आगे है। इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री of about 15,200 kilometer and the total length of the coastal line of the mainland including Andaman Nicobar and Lakshadweep 7,516.6 किलोमीटर। अगर हम बात करें इंडिया के टोटल लैंड बाउंड्री की, तो लैंड बाउंड्री का मतलब यहां से इस तरीके से हम देखेंगे लैंड बाउंड्री को। जितना भी लैंड कवर एरिया से मिली हुई हमारी बाउंड्री है,
इस बाउंड्री की टोटल डिस्टेंस है 15,200 किलोमीटर and the coastline of the mainland including अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। अगर हम कोस्टल लाइन देखें, कोस्टल लाइन मतलब नियर अबाउट द सी, तो ये वाली जो लाइंस हैं ये हमारी टोटल हैं इंक्लूडिंग टू अंडमान निकोबार आइलैंड 7,515.5 16.6 extremely sorry 16.6 okay. India is bounded by the Young Fold Mountain in the northwest. Young Fold Mountain, नवीन या युवा वलित पर्वत, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो इंडिया में जो नॉर्थ उत्तर और उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी हिस्सा है वो यंग फोल्डेड माउंटेन से घिरा हुआ है, लाइक हिमालय, लाइक हिमालय। नॉर्थ ईस्ट it is called north west, it is north and it is north east। तो ये टोटल जो एरिया है it is covered by Himalaya, it is covered by Himalaya region। Himalaya is a folded mountain and youngest mountain in the world, okay। south of about 22 north latitude it brings to taper and extend towards the Indian Ocean। 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो 22 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये दक्षिण की तरफ जो स्थलखंड भारत का जाता है वहां पर संकरा होता जाता है। यह स्थलखंड कैसा होता जाता है? संकरा होता जाता है, तिकोना होता जाता है इंडियन ओशन तक, जो हिंद महासागर है वहां तक। डिवाइडिंग इनटू टू सीज, द अरेबियन सी on the west and the Bay of Bengal on the east। तो ये जो दक्षिणी हिस्सा है ये दो महासागरों को डिवाइड करने में योगदान देता है, एक अरेबियन सी और दूसरा बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी इज द western part of India and Bay of Bengal is the eastern part of India। We have seen this map, it is eastern, it is western, southeast and southwest, okay। Look at figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30, okay। जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है उसमें अगर हम डिफरेंस निकालें तो 30 डिग्री का डिफरेंस निकल के आ रहा है। अब ये 30 डिग्री का डिफरेंस कैसे आएगा? 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट, it is divide 97 degree 25 minute to 68 degree 7 minute, so is equal to 30 degree and 37 degree 6 minute minus 8 degree 4 minute divide into 30 degree, approximately 30 degree, minimum 29 point something, 29 point something, okay। Despite this fact that east-west extent approach to the
टू बी स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। ये बोल रहे हैं कि डिफरेंस 30 डिग्री आने के बाद भी उत्तर से दक्षिणी हिस्सा जो है ज़्यादा लंबा है अपेक्षा किसके, पश्चिम से पूर्वी हिस्से के। तो ये डिफरेंस इसमें बताया गया है। फ्रॉम गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लॉग ऑफ 2 hours। गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश के टाइम में डिफरेंस है 2 घंटे का। Hence, time along the standard meridian of India 82 degree 30 minute east passing through Mirzapur in Uttar Pradesh। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर यूपी। तो मिर्ज़ापुर की यूपी से होते हुए जाता है। एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ the day and night as one moves from south to north। तो देशांतर रेखाओं की वजह से दिन और रात में भी अंतर होते हैं, ये बताया गया है यहाँ पर। अक्षांश रेखाओं के आधार पर लैटिट्यूडनल लाइंस। सो इट इज अ रियलिटी, क्योंकि जो अर्थ का एंगल है वो 23 डिग्री ना हाफ झुका हुआ है। तो उस आधार पे हम इसे मान सकते हैं कि दिनों रातों में अक्षांश रेखाओं के आधार पे अंतर होता है। और जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइमलाइन है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास होती है, जो मिर्जापुर के यूपी से होते हुए गुजरता है। ओके, फाइंड आउट, आपको ढूंढना है वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। क्यों हमने 82.5 डिग्री को ही निर्धारित किया भारत का टाइम जोन बनाने के लिए। इसका सबसे सटीक आंसर ये हो सकता है कि इंडिया में 30 डिग्री का अंतर है और 30 डिग्री का अंतर 2 घंटे 2 आवर्स डिफरेंस बना देता है पूरे भारत में। सपोज अगर हम यहाँ पर टाइमलाइन बना देते या हम यहाँ पर टाइमलाइन बना देते तो पूरे भारत में समय का बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता। तो इसीलिए इसमें बीच की जगह चुनी गई, जिसके आधार पर हमने क्या किया, समय को विभाजित पूरे भारत में एक जैसा किया गया। ओके, इसे आप लोग भी देखें घर में। व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट at Kanyakumari but not so in Kashmir। so ये डिफरेंस क्यों आता है दिन और रात में कन्याकुमारी और कश्मीर में। तो कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात में क्या अंतर आता है ये आपको बताना है। तो इसमें कोई अंतर नहीं रहता है, ये भी आप समझें। ओके, इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व में उसकी स्थिति। The India landmass has central location between the East and the West Asia। एशिया के ईस्ट और वेस्ट हिस्से के मध्य में भारत स्थित है। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide the strategic central location of India। इंडिया की जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन मानी जाती है एशिया कॉन्टिनेंट में। एशिया कॉन्टिनेंट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज। नोट द डेक्कन पेनिनसुला, दक्षिण का पठार भारत का, produce into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia। तो भारत की जो लोकेशन है वो वेस्ट एशिया से क्लोज कांटेक्ट बनाने में कारगर है। अफ्रीका के साथ, यूरोप, फ्रॉम
वेस्टर्न कोस्टल, जो भारत का वेस्टर्न कोस्टल है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, वह वेस्टर्न एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप के साथ रिलेशन बनाने में जिम्मेदार है या सहायक है। एंड विथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, no other country has a long coastal line on the India Indian Ocean as India has indeed। इंडिया का जो ईस्टर्न एरिया है, ईस्टर्न कोस्टल एरिया, वो इंडिया के ईस्टर्न एशियन कंट्रीज के साथ संबंध बनाने में जिम्मेदार है। इट इज इंडिया इमिनेंट position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it। हिंद महासागर में सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन इंडिया की होने की वजह से हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा, यानी कि इंडिया की लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन होने की वजह से इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन पड़ता है। इसके लिए जिम्मेदार भारत है। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इन 1869 इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7,000 किलोमीटर। सुएज कैनाल 1869 में जब खुला, उसके बाद एशिया या भारत या यूरोप की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पर भारत की स्थिति है, ये एशिया है, एशिया के पड़ोसी देशों के साथ यहाँ पर देख नेबरिंग कंट्रीज, इट इज चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। It is overall neighboring country and longest coastal line in India. Okay. India on international highway of trade and commerce. Okay. India's contacts with the world have continued through the ages, but here relationship through the land routes are much older than here maritime contacts। कहने का मतलब ये है कि इंडिया के समुद्री मार्गों से पहले स्थल मार्ग ज़्यादा जिम्मेदार थे रिलेशन स्थापित करने में विदेशियों के साथ। यहाँ पर आप देखते हैं कि इंडिया में जब तक वाटर वे जब तक नहीं खुला था, तो उससे पहले रूट जो थे वो लैंड से होते हुए जाते थे और वहाँ से विदेशियों के साथ व्यापार किया जाता था या अन्य चीज़ें व्यापार और विचारों का आदान प्रदान होता था। द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड passage to the ancient travelers will the ocean restrict such interaction for a long time। तो passes थे, passes it is called दर्रा, दो पहाड़ियों के बीच में जो जाने वाली जगह होती है उसे passes कहा जाता है। तो passes के थ्रू लोग आते थे इंडिया में, और खैबर पास इट इज कमिंग टू आर्य, और लोग भी आए थे भारत में। तो ये सब चीज़ें थी, और नदियों के या समुद्र के रास्ते बड़े बाद में खुले, तो उससे पहले इस तरीके के रास्ते ही हुआ करते थे। दीज रूट्स हैव contribute in the exchange the ideas and commodities since ancient time। the ideas of the Upanishads and the Ramayanas, the stories of Panchatantra, the Indian numerals
numerals and decimal system thus could reach many parts of the world. तो ये जो भारतीय रामायण है, पंचतंत्र उपनिषद और भारतीय नंबर सिस्टम, डेसिमल प्रणाली, ये सब विश्व तक पहुंची इन्हीं रास्तों के थ्रू। द स्पाइसेज, मसाले, मसलिन एंड मर्चेंडाइज, वस्त्र, मसाले, मलमल और वस्त्र, ये तीनों चीज़ें वेयर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। तो भारत से विदेशों तक, अलग अलग देशों में ये चीज़ें जाती रही, ये रास्ते जब खुले समुद्री मार्ग। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, मूर्तिकला, ग्रीक मूर्तिकला एंड द आर्किटेक्चुअल, वहाँ का जो आर्किटेक्चुअल को हम कहेंगे, आर्किटेक्चुअल मकान बनाने के या घर बनाने के जो तरीके थे वो भी बदले इंडिया में। आर्किटेक्चुअल स्टाइल ऑफ डोम्स, गुंबद कहते हैं हम इन्हें, एंड मेरेंटाइल फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो कुछ कुछ चीज़ें हमारे यहाँ से विदेशी भी लेकर गए और कुछ चीज़ें हमने विदेशियों की भारत में भी अपनाई, जैसे गुंबद और मीनार और आर्किटेक्चर वहाँ का भारत में अपनाया गया। तो इस तरीके से भारत में विदेशियों का आगमन होता रहा और रास्ते खुले, तो इस वजह से व्यापार भी बढ़ा और विचार भी एक दूसरे के सामने आए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इसके बाद हम अगले पार्ट में इससे आगे इंडियाज़ नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।